अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन में 2 बार दावा किया कि उन्होंने पिछले साल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग को रोका। ट्रंप ने कहा कि एक साल में मैंने 8 जारिहाना जंगें ख़त्म की, जिनमें कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवो और सरीबा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इसराइल और ईरान और आज़रबाईजान शामिल है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में दोबारा कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग रोक दी। He wrote just moments ago, the United States is the most powerful country in the world. I completely rebuilt its military in my first term, including new and many refurbished nuclear weapons. I also added Space Force and now continue to rebuild our military at levels never seen before. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। इस मुनफरिद प्रोग्राम में पीएम मोदी मुल्क के तलबा से जुड़ते हैं। प्रोग्राम में पीएम मोदी के इम्तिहानात के दबाव को कम करने के लिए मुफीद मशवरे देंगे। मुताले पर तवज्जो देने और इम्तिहानात को ज़िंदगी का एक जश्न करार देने के मौज़ूआत पर परीक्षा पर चर्चा में ज़ेर बहस आएंगे। अपने 9वें परीक्षा पर चर्चा एडिशन के साथ पीएम मोदी आज मुल्क के सामने आ चुके हैं। तलबा के साथ इस इंटरेक्टिव प्रोग्राम के जरिए मुल्क भर के ज़हीन तलबा से पीएम मोदी जुड़ चुके हैं। हिंदुस्तान और अमेरिका ने अहम और उभरती हुई दिफाई टेक्नोलॉजीज़ में ताउन को मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया ताकि बदलती हुई ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। DRDO की मेज़बानी में 24वीं इंडो अमेरिकी ज्वाइंट टेक्निकल ग्रुप प्लीनरी मीटिंग के दौरान ये बात की गई। 3 और 4 फरवरी को नई दिल्ली में मुज़ाकरात मुनक़्क़िद हुए। मीटिंग की सदारत DRDO की डायरेक्टर जनरल चंद्रिका कौशिक और अमरीकी दफ्तर बराए तहक़ीक़ व इंजीनियरिंग के असिस्टेंट सेक्रेटरी माइकल फ्रांसिस डॉड ने मुश्तरका तौर पर की। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को असेंबली के बजट सेशन में अहम तजवीज़ रखी। उन्होंने कहा कि यूटी मॉडल के साथ असेंबली का निज़ाम काम करना इंतहाई मुश्किल है और इसको आइन से ख़त्म किया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म से अपील की कि ये निज़ाम या तो रियासत की शक्ल में होना चाहिए या बग़ैर असेंबली के यूटी रहे। उनका कहना था कि ये हुकूमत हाथ पीछे बांधने के मुतरादिफ है और अवामी मैंडेटेड के साथ धोखा है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि उनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए पुरअज़्म है और आर्टिकल 370 को खिताब में वाज़ेह तौर पर जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आइन का हिस्सा अभी भी है। The tourism department outsources on a regular basis various assets like cafeterias, huts, parking areas, entry ticketing, etc., which provides direct and indirect employment to youth. Further, the government of Jammu and Kashmir has formally notified simplified procedural guidelines for the registration of homestays with the objective of encouraging community participation in tourism. This initiative is aimed not only at creating additional employment opportunities, but also at strengthening tourism infrastructure in border and rural areas, thereby promoting inclusive and regional balanced tourism development across the Union Territory. Part B. The registration and renewal of guest houses, hotels, homestays, travel agencies, adventure tour operators, and other tourism-related establishments are being carried out online. Further, the registration renewal process is covered under the Public Service Guarantee Act. Upon fulfillment of all requisite formalities as per the prescribed checklist, the applicant is assured of registration renewal within a stipulated time of 30 days through the online system. Since the rules governing the registration and renewal of all tourism units have been framed in 1978, as such, the Tourism Department is in the process of revising the Jammu and Kashmir tourist trade rules with a view to further simplify, rationalize, and streamline the registration and renewal framework for all tourism units. The proposed revisions aim at making the entire process more transparent, user-friendly, and strictly time-bound, thereby reducing procedural delays and improving ease of doing business in the tourism sector across the Union Territory. अमित शाह जुमेरात की शब जम्मू शहर पहुंचे। मरकजी वजीर दाखिला जम्मू कश्मीर के 2 रोज़े दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान वो सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। जम्मू एयरपोर्ट पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमित शाह का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर
मनोज सिन्हा, अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा और दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी उन्हें खुश आमदीद कहा। अमित शाह अपने दौरे के दौरान बॉर्डर पर चौकियों का मुआयना करेंगे, फौजी जवानों के लिए फलाही मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा एहलकारों के अहल खाना से मुलाकात करने के साथ तकर्रूरी के खतूत भी देने के प्रोग्राम में शरीक रहेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी रात को जम्मू पहुंचे हैं और जैसे कि पहले ही उनका ये दौरा तय है 2 दिन का, जिसमें सीमा क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। इसके अतिरिक्त सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग है। सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग के अतिरिक्त कश्मीर में भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, जिसमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जिसमें बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मणिपुर से खबर है कि कोकी अक्सरियती ज़िला चुराचंदपुर में जुमेरात की शाम सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान भयानक तसादुम हुआ। दरअसल कोकी कम्युनिटी के रुकने असम्बली नीमचा किपगिल ने बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर हल्फ लिया है, जिसके खिलाफ गुस्सा व गम फूट पड़ा है। मुजाहिरीन ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की और किपगेन के खिलाफ नारे लगाए। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने हुजूम को मुंतशिर करने की कोशिश की तो सूरत हाल और ख़राब हो गई। मुजाहिरीन ने पथराव किया, जिस पर फोर्सेस ने लाठियां इस्तेमाल की। इस दौरान 2 अफराद मामूली जख्मी हुए। सीनियर ऑफिसर के मुताबिक सूरत हाल कशीदा है और इसे कंट्रोल करने के लिए इजाफी फोर्सेस रवाना की गई हैं। मणिपुर के इस जिले में कशीदगी बुध की शाम से जारी है। हुकूमत हिंद, नागालैंड हुकूमत और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदों के दरमियान सहफरीकी मुआहदा हुआ है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में इस मुआहदे पर दस्तखत किए गए। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि यह मुआहदा अमन को यकीनी बनाएगा और शुमाल मशरिक हिंदुस्तान की तरक्की यानी विकसित नॉर्थ ईस्ट के हुसूल की तरफ एक अहम कदम है। मुआहदे की तकरीब कर्तव्य भवन नई दिल्ली में मुनक़िद हुई, जिसमें तमाम मुताल्लिक़ा फ़ारिक़ीन ने शिरकत की। आज का दिन विवाद मुक्त उत्तर पूर्व, विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त, विवाद मुक्त और विकसित नॉर्थ ईस्ट की जो कल्पना कर रही है, उसमें आज हम एक कदम और आगे बढ़े हैं। 11-12 साल पहले पूरे उत्तर पूर्व के अंदर कई सारे हथियारी ग्रुप हमें दिखाई पड़ते थे। कई सारे छोटे छोटे विवाद उत्तर पूर्व की शांति को बिखराव की दिशा में ले जाते थे और कई सारे अंतर्राज्यीय डिस्प्यूट्स भी राज्यों की शांति को भंग कर देते। 2021-22 के चुनाव में ENPO के सारे लोग मुझे मिलने आए थे। मैंने ही बुलाया था क्योंकि इन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। तब मेरी उनसे बात हुई थी कि ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो हर विवाद का समाधान ढूंढना चाहती है। आप भरोसा करिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लीजिए, आपको उचित न्याय और सम्मान दोनों जरूर मिलेगा। और मुझे आज बड़ा हर्ष हो रहा है कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने एक लंबे समय तक ENPO और नागालैंड सरकार दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर आज ये विवाद का समाधान की समाप्ति पर हम पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में मफाद आमा की एक अहम अर्जी पर समाअत करने का फैसला किया है। चुनाव से पहले गैर मुंतखब मुफ्त
चीज़ें देने का वादा करने वाली सियासी पार्टियों की रजिस्ट्रेशन ख़त्म करने या इंतखाबी निशान जब्त करने का हुक्म देने की अदालत से दरख्वास्त की गई है। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अदालत में बताया कि सियासी जमातें वोटरों को मुतासिर करने के लिए हर बार ज़्यादा और ज़्यादा मुफ्त चीज़ें देने का सिलसिला जारी रखती हैं। अदालत ने 2024 में इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन और मरकज़ को नोटिस जारी किए थे। 2022 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल फाइल किया था और उस समय बताया था कि इस समय भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा है और ये जो कर्जा लगातार बढ़ रहा है उसका मूल कारण है फ्रीबीज। लोग केवल सूर्य चंद्रमा के अलावा हर चीज का वादा कर रहे हैं। कोई लैपटॉप देने का वादा करता है, कोई स्कूटी देने का वादा करता है। दक्षिण भारत में तो सोने चांदी के गहने तक के वादे कर दिए जाते हैं। कैश ट्रांसफर किया जा रहा है, कोई 2000 रुपए ट्रांसफर करने का वादा कर रहा है, कोई 3000 रुपए का वादा करना है। कानून ये कहता है कि आप चुनाव के पहले किसी को शराब की 500 रुपए की बोतल नहीं दे सकते, आप किसी को लड्डू का एक किलो का लड्डू का डब्बा नहीं दे सकते। और वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले 5,000, 2,000 रुपए देने का वादा कर रही है। ये अपने आप में करप्ट प्रैक्टिस है। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। जब मैंने पिटीशन फाइल किया तो उस समय 150 लाख करोड़ का कर्जा था। अभी मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस समय भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। बच्चा बच्चा इस समय 1.5 लाख के कर्जे में डूबा हुआ है। इसलिए आज मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है इस पे तत्काल सुनवाई किया जाए। जन कल्याणकारी योजना अलग होती है और मुफ्तखोरी अलग होती है। ये जो मुफ्तखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है इस पे कंट्रोल करना जरूरी है। इसके पहले भी जब सुनवाई हुई थी तब भी मैंने कहा था कि कमेटी बना दिया जाए और कमेटी इस पे एक डिसाइड कर ले, फ्रीबीज और जन कल्याणकारी योजना के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर दे, प्रॉपर एक गाइडलाइन बन जाए। लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। आज इसीलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट। जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। आरामगढ़ में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में जमीयत की जानिब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक याददाश्त पेश की गई जिसमें नफरत अंगेज़ तकारीर की रोकथाम का कानून, सरकारी मुलाजिमतों और सियासी मैदान व फलाही स्कीमात में मुसलमानों की मसावियाना नुमाइंदगी के अलावा मुस्लिम अक़लियतों को इसी फ़ीसद सब्सिडी पर ख़र्च की फ़राहमी जैसे उमूर शामिल हैं। इस याददाश्त में मसाजिद के इमाम व मौज़िनों के एजाज़िया को 12,000 रुपये करने का मुतालबा किया गया। इस प्रोग्राम में जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना के सदर मौलाना सैयद शाह एहसानुद्दीन और सेक्रेटरी पीर खलीक अहमद के अलावा जमीयत के ज़िम्मेदारों ने शिरकत की। आसाम के बीजेपी सदर दिलीप साइकिया ने कहा कि एनडीए इत्तेहाद असेंबली इंतखाबात में तमाम 126 हल्कों में हिस्सा लेगा। ताहम इत्तेहादी पार्टियों के साथ नशिस्तों की तकसीम के मामले को अभी हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी महफूज, तरक्की याफ्ता और खुद कफील आसाम के विजन के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेगी। Our focus is 126 constituency assembly segment. All assembly segment will be contested by NDA. First of all, and BJP, AGP, Ganashakti, TMPK, Rabah Singh Sangram Parishad, and BPF, simultaneously EPPL. All our NDA alliance will sitting together to finalize the contesting seat within a short period, and will go as NDA and will contest as NDA, and we have faith on people that people will give another chance to form BJP-led NDA government in Assam. First of all, development is our main agenda. Then the self-reliant Assam will be the second agenda. And last but not the least, the secured Assam will be the prime agenda. आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई मामले पर बड़ा बयान दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी में उनके 1000 लोग हैं। जिसने वेबसाइट बनाई थी इसी ने इसे हैक किया। मतलब मैं बोला ना, कांग्रेस में मेरा हजारों लोग हैं। जिसने वेबसाइट बनाया था वही हैक कर दिया। कांग्रेस में मेरा हजारों लोग हैं,
वो दिन भी आप मेरा खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय सेहरा देखो, पीछे में जितना लोग बैठा था किसी का मुंह में हंसी नहीं था। सब जान रहे थे कि हम लोग पाप कर रहा हूं। मतलब मैं बोला ना, कांग्रेस में मेरा हजारों लोग हैं। जिसने वेबसाइट बनाया था वही हैक कर दिया। कांग्रेस में मेरा हजारों लोग हैं। वो यूपी के प्रयागराज से खबर है। शहर में एक मस्जिद के करीब बेसमेंट की तामीर के दौरान मस्जिद की दीवार जुज़वी तौर पर गिर गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए और एक शख्स के दबे होने का खदशा है। एसीपी रवि गुप्ता के मुताबिक जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वो होश में हैं और बात कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर बताया गया कि 3 या 4 अफराद वहाँ मौजूद थे, जिनमें से एक मैकेनिक और 2 मजदूर बचा लिए गए हैं। एक और शख्स के दबे होने का इम्कान है, जिसके लिए SDRF को तलब किया गया। यूपी के बहराइच से खबर है। हिंद नेपाल सरहद पर सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए हार्ड चेक पोस्ट पर जदीद AI पर मबनी निगरानी निज़ाम नस्ब कर दिया गया है। नए निज़ाम में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन कैमरे शामिल है, जो गाड़ियों और सरहद के पार हरकत को करीब से मॉनिटर करेंगे। हुक्काम के मुताबिक ये निज़ाम मशकूक सरगर्मियों के साथ साथ गाड़ियों की चोरी और स्मगलिंग रोकने में भी मददगार साबित होगा। आपको बता दें कि बहराइच का ये इलाका सरहदी तिजारत के लिए अहम गेटवे है और मुकामी मैशियत को फ़रोग़ देने में कलीदी किरदार अदा करता है। बॉर्डर पे जो हमारा ट्रेड एंड ट्रांजिट रूट उपीडिया पे है, वहां हमने बहुत से कैमरे लगाए हैं। उसमें से एक ANPR भी है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर, जो कि हिंदुस्तानी नंबर प्लेट को तो रीड करता ही करता, इसके अलावा जो नेपाली नंबर प्लेट है उसको भी रीड करेगा। और कोई भी संदिग्ध वाहन है जिसका कि डाटा हमारे पास अवेलेबल है, वो इसके अलावा वाला ई-परिवहन ऐप भी हमें मदद करता है। और ये जितने भी कैमरे हैं AI इनेबल्ड है, तो ये सिस्टम हमें मदद करता है कि कोई यदि संदिग्ध वाहन अंदर घुसने की कोशिश करता है या नेपाल में क्रॉस ओवर करने की कोशिश करता है, तो हमको तुरंत ही सतर्क अलर्ट मिल जाता है और हम उनको रोक देते हैं।